Gurutam. Okay. Yeah. So guys, we have already seen in our previous session what is the speed, what is velocity, what is average speed, right? So just मैं एक बार फिर से ओवरव्यू थोड़ा सा 5 मिनट्स में ओवरव्यू दे देता हूँ कि हमने स्पीड के लिए क्या है, स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, Time right? take. Time taken, yes. This is for the speed. And for average speed, what is the formula for average speed? Total distance Total upon, distance on total time. right, Time. good. Total distance upon total time taken. उसके बाद हमने velocity. So velocity is what? Velocity is displacement upon time. Displacement upon Time. time. कभी कभी speed को ही velocity भी बोल देते हैं लोग. And what is the basic difference? नहीं. Speed. Yeah, tell me. Nothing, sir. वो मैं Okay. Speed is a scalar quantity and velocity is a vector quantity. That's why it's displacement upon time and यहाँ पे distance upon time है, right? लेकिन अगर सिर्फ straight line या किसी की बात करेंगे, so directly we can consider speed and velocity as same, but actually में same नहीं होता है, okay? And हमने फिर एक formula भी पढ़ा था, A is equals to V minus U by T. So Anika, what is V here? Anika? Initial velocity. V. No, final velocity. V is the final, U is initial and T is the time, right? और मैंने आप लोग को 3 equations भी बताए थे. V is equals to U plus AT. दूसरा equation है V square is equals to U square plus 2AS. And तीसरा equation है S is equals to UT plus half AT square. What is S here? Sana? Sana, can you hear me? Yeah, what is S here? Sir, just a minute. मैंने whiteboard. Sir, I'm connecting my earphones to it. That's why the voice is breaking. Can you say what you were saying again? Yeah, I'm asking. मैंने board पे लिखा है, ये दिख रहा है आपको right में? Yeah. What is S here? What is S here? What do you mean by that? This S. Equation में S को क्या बोलेंगे हम? Distance. Distance, right? Okay, fine. So यहाँ तक guys आप लोगों को clear है? कोई problem, कोई परेशानी यहाँ तक? नहीं. Okay, so हम 1 और 2 questions अभी जो है हम solve करेंगे जो हमने पहले भी कर रखा है, ठीक है? और थोड़ा सा मैं आपको ओवरव्यू दे दूं जिससे आप लोगों का बहुत दिनों से छूटा है, सो रिवाइज भी हो जाएगा. Okay, is it fine? So I am taking one problem, only 2 problems we will do that. Okay, and then after that we will start our velocity, distance time graph and velocity time graph. Okay, so बस revision के लिए मैं question यहाँ put up कर रहा हूँ. So Srishti, can you read the question please? A ball starts from rest and rolls down 16 meter down an inclined plane in 4 seconds. 4 seconds. A. What is the What is the acceleration of the acceleration ball? of the ball? B. What is the velocity of the ball at the bottom of the incline? Right. अब देखिए guys, यहाँ पर क्या है? A ball starts from rest. So यहाँ पे U will become here what? U will become 0, right? Yeah. Rolls down how much meters? How much meters is coming down? 16 meter. 16 meters. So S we can consider as 16. In inclined plane, what is the time? 4 seconds. Time is going to be the 4 seconds. What they're asking us? Acceleration. And what is the velocity of the ball at the bottom of inclined plane? दो चीजें ये पूछ रहे हैं हमसे. एक तो acceleration पूछ रहे हैं और दूसरी चीज पूछ रहे हैं हमसे velocity. तो अब देखिए हमसे पूछा इन्होंने A पूछा है and they are asking me final velocity पूछा है, right? तो अब देखो हमें एक इक्वेशन पता है S is equals to ut
plus half at square. Do we know that? Yeah. So Anika, can you hear me? Anika, Yes, I'm here. I'm here. so here s की जगह पे क्या लिखेंगे guys? 16 और यहाँ पर हम 0 times 4 plus half a I don't know into t कितना? T is 4 square. Right guys? So you can see here going to be the 16 equals to ये कितना हो जाएगा? ये 0 हो जाएगा पूरा. 0. This will become half into a into 16. So we can cancel out. So it becomes here 16 is equals to 8a. So from here 16 by 8 that is equals to a. It will cancel. So a will become here how much? 2. A will become here 2. अब देखिए यहाँ पे हमें 2 जरूर मिल रहा है और ये इंक्लाइन प्लेन डाउन जा रहा है. क्या बोल रहा है ये? डाउन जा रहा है. राइट ऑलरेडी क्वेश्चन में ये दे दिया है. ठीक है, तो एक्सेलरेशन हो गया हमारा 2. अब उसके बाद जब ये डाउन आएगा, डाउन कहने का मतलब देखो बॉल हमारा कुछ यहाँ पे था और ये डाउन आएगा तो कुछ ऐसे बॉल नीचे गिरेगा. अगर पहाड़ है मान लिया हमने, ऐसे कुछ पहाड़ है. राइट ये पहाड़ हमने मान लिया ऐसे है तो ये जाएगा. तो अभी क्या है यहाँ पे इसकी इनिशियल वेलोसिटी 0 थी. जब ये इंक्लाइन प्लेन, ये इंक्लाइन प्लेन हो गया यहाँ पे, मतलब लास्ट पॉइंट मतलब बॉटम ऑफ द इंक्लाइन, यहाँ पहुंचने पर इसकी वेलोसिटी क्या होगी ये निकालना है अभी हमें. राइट तो हमें ऑलरेडी एक्सेलरेशन मिल गया हमको या नहीं मिला? मिल गया. सो विच फॉर्मूला आनिका, विच फॉर्मूला वी विल अप्लाई नाउ फॉर फाइंडिंग द v? So we can use v is equal to u plus at. Good. V is equals to u plus at. So v is equal, u is 0, a is 2, time is 4. So v becomes how much? 8 meter per second. Is that clear? Yes, sir. Sana, what is the unit for acceleration? Sana? Meter per second square. Meter per second square. Good. So आपको ये दोनों, ये क्वेश्चन समझ आया कैसे बनाएंगे हम इस क्वेश्चन को? Yes, sir. सना आपको क्लियर है? सना? Yes, sir. So please make a note of it fast. और इस तरह के ही क्वेश्चन बहुत टफ आपसे पूछा तो इस तरह से वो लोग पूछ सकते हैं गाइस. ठीक है, पहली चीज. दूसरी चीज, जो टेस्ट पेपर्स मैं आप लोगों को या असाइनमेंट पेपर्स जो भी मैं आपको देता हूं, प्लीज आप लोग सीरियसली बनाएंगे. अगर आपने बस उतना कर लिया, बाद बाकी सारा कुछ छोड़ दिया, जो टेस्ट पेपर्स मैं डिसाइड करता हूं बस उतना कर लिया, तो फिजिक्स में आप कोई भी एग्जाम आसानी से दे सकते हो. ये क्वेश्चन हो गया. डू इट फास्ट. Sir, I'm done. Okay, that's good. Sana and Shruti done? Sir, done. Okay, Sana आपका? Sana, are you done? Yes, sir. Okay. So can you just explain the thing that you've drawn here? I don't understand why. Oh, कुछ नहीं. Question क्या लिखा हुआ है? Can you read the question? A ball starts from rest and rolls down 16 meters down an inclined plane in 4 seconds. Wait, मैंने ये पहाड़ बनाया. पहाड़ ही तो inclined plane normally होता है. तो पहाड़ पर ये बॉल स्टार्ट हुआ तो स्टार्टिंग में इनिशियल वेलोसिटी 0, और जब ये डाउन आया तो यहाँ पर जो स्ट्रेट लाइन, यहाँ जैसे अब देखो पहाड़ कहीं ना खत्म होगा. राइट तो यहाँ पहुंचने पर क्या वेलोसिटी होगी वो निकालनी थी. वही चीज मैं बता रहा था कि इंक्लाइन प्लेन कहने का मतलब ये कुछ इस तरीके से इंक्लाइन होता है. राइट मतलब पहाड़ से नीचे कैसे कोई बॉल या फिर आपका कोई इंक्लाइन प्लेन हुआ, वही बता था, कुछ वहां बताया नहीं है फिगर में. ये वाली क्लियर है ये और ये इक्वेशंस के साथ?
क्लियर है सना? Yes, sir. Okay, fine. Sorry. I am changing the question and the page also. Okay, guys. So I have another question. Anika, can you read the problem, please? On a 100-kilometer track, a train travels the first 30 kilometer at the uniform speed of 30 kilometer per hour. How fast must the train travel the next 70 kilometer so as to average speed 40 kilometer per hour for the entire trip? I think इस तरह के क्वेश्चन हमने पहले भी किए हुए हैं, तो कोई ट्राई करेगा क्या सॉल्व करने का? Yes, sir. या प्लीज ट्राई कीजिए एक बार. सना प्लीज आप भी ट्राई कीजिए और थोड़ा फास्ट करेंगे गाइस, क्योंकि हमें बहुत कुछ करना बाकी है. ये मैं रिवीजन पर्पस से आप लोग को 2 क्वेश्चंस दिया हूं ताकि आप लोग को रिवाइज हो जाए सारी चीजें. So you have guys 3 minutes now to solve this problem. जो बना लेगा वो आंसर नहीं बोलेगा, बस इतना बोलेगा आई एम डन. So I have a doubt in this one. Yes, tell me. So it says that on a 100-kilometer track, a train travels the first 30 kilometer at a uniform speed of this. So there's given, we have been given a distance, and then we have been given a speed for the distance. Wait, total here A, and this point is C point, right? So total distance is how much? Total distance given to us, that is 100 kilometer. Am I right? Yeah. Okay. Now the first 30 kilometers, so I can consider this is B point. So this is how much? This is 30 kilometer. Am I right? Hello? Yeah. Okay. Yeah. This part will become how much then? This part will become 70 kilometers. Okay. Now they says that the first 30 kilometer at a uniform speed. What is the speed between A to B? 30 kilometer per hour. So 30 kilometer per hour. Do you know that the speed between B to C? No, but it says so as to average speed. So can I write Because it down they've here? given the average of the entire trip. So they have can we take it X as a speed between BC? Can Yes. we take that? Okay, guys. Okay. Now, do you know the time for AB? Do you know the time I for? tried. It was 1 hour, right? Yes, 1 hour is the time. Yeah. Do you know the time for BC? Do you know the time for BC? No. We don't know. Can we calculate the time for the BC? No. Why no? Distance दिया है, speed दिया है, तो time. So 70 by x, 70 by x. So can I write it down here? The time. But we don't get a final answer, so we can't really calculate. Wait. Total time for the journey will become how much? Total time for journey will become how much? TAB plus TBC. So can I write it down this one as 1 plus 70 by x? Yes. So this becomes how much? This becomes x plus 70 by x. किसी को प्रॉब्लम है इसमें? No. No. यहाँ पर मैंने क्या किया? कुछ नहीं, एलसीएम ले लिया. ये 1 अब 1 था तो 1 by 1 होता है, तो मैंने एलसीएम लिया तो x plus 70 by x आ गया. किसी को दिक्कत यहाँ पे परेशानी है? No. एवरेज स्पीड 40 बोल रखा है. क्या बोल रखा है? एवरेज स्पीड इज 40.
So guys, average speed 40 बोल रखा है. So I will do what here? I will write it down here. Average speed is equals to 40 kilometers per hour. So average speed निकालने के लिए क्या फॉर्मूला है? Total distance upon total time. So total distance कितना है यहाँ पे? What is the total distance? What is X plus 70 upon X. नहीं, total distance 100 हो गया ना? अच्छा. Total distance. अच्छा, distance also. Total distance becomes how much? That becomes 100 kilometer. So I'm just writing down here. Total distance is 100 upon total time कितना हो गया था? X plus 70 by X. And that should be equals to 40. Can I write? So ये X कहाँ जाएगा? This X will go to multiply with this. So can I write down here 100x upon X plus 70 is equals to 40. So यहाँ से आप देखो क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे. So can you write it down here? 40x plus 70 times 4 is 2800. Can you write that? Yes, sir. Sana, are you listening me? Yes, sir. तो यहाँ से कितना हो जाएगा ये 40 वाला x मैंने बोल रखा है इक्वेशन सॉल्व करने के लिए वेरिएबल्स एक तरफ आ जाएंगे. So this becomes here 60x that is equals to 2800, right? So अगर आप यहाँ से देखो तो x is equals to 2800 upon 60. So ये cancel. So और divide दे दो 280 को 6 से. So कितना आ जाएगा? So just let me check. So 280 divided by 6. This will become 46.66. So x क्या है? x हमारा स्पीड था. क्वेश्चन में देखो हमने x क्या लिया था? We have taken the speed of this. So they have asked that how much fast the train travel the next 40. So the answer will become here 46.66 kilometer per hour. Is that clear now? Sana? Yes, sir, it's clear. अभी समझ आया पूरा? नहीं समझ आया तो दोबारा पूछो. कोई So can you go to the next page? I want to see it again. wait. कॉन्सेप्ट समझ में आया? पहले ये मुझे बताओ. सर मुझे यहाँ का समझ में आ गया. जो भी आपने इस पेज में लिखा है यहाँ तक समझ में आ गया. नेक्स्ट पेज मुझे वापस देखना है. नेक्स्ट पेज में आप ये देखो यहाँ क्या लिखा है? एवरेज स्पीड लिखा है मैंने, राइट? सो एवरेज स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन टाइम. तो डिस्टेंस, टोटल डिस्टेंस 100 किलोमीटर और टोटल टाइम हमने ऐड करके निकाला था ना x plus 70 by x. तो अब ये x कहाँ चला जाएगा? ये x ऊपर चला जाएगा मल्टीप्लाई में. ओके, समझ में आ गया. तो ये कैसे हुआ मैं लिख भी देता हूँ. अगर नहीं क्लियर है आप लोगों को मैं बता देता हूँ कैसे हुआ. आप लोग को पता होना चाहिए. मैं यहाँ लिख रहा हूँ रफ में a by b upon c by d. तो इसको हम क्या लिखते हैं? इसको हम लिखते हैं a by b times d by c. तो उसी तरीके से देखो अगर मैंने 5 upon 7 by 2 लिखा तो इसका मतलब क्या हो गया कि 5 upon 1 है. सो 5 upon 1 into 2 by 7. तो उसी तरीके से ये हम सॉल्व करेंगे तो x कहाँ चला जाएगा? x ऊपर चला जाएगा मल्टीप्लाई में. गॉट इट? सना क्लियर है? यस सर. तो यहाँ से हमने x निकाल लिया. अनिका क्लियर है अभी आपको? Sir, I understand. ओके. एंड सृष्टि? क्लियर है सर. ओके. तो प्लीज नोट करना है तो नोट कर लो या नोट कर लिया तो भी बताओ. मैं टाइम दे रहा हूँ 2 मिनट. नोट कर लो फटाफट आप लोग. ओके. Sir, I've done it already. I was doing it side by side. ओके. तो क्लियर है कैसे करते हैं? यस सर. और इस टाइप का क्वेश्चन अनिका एंड सना मैं आई थिंक 4th टाइम बता रहा हूँ. मैंने आप लोग रिवाइज तो करते हो नहीं, ठीक है? तो समझ नहीं आएगा. मैं वही बार बार कहता हूँ कि आप लोग थोड़ा सा रिवाइज किया करो. ये वैल्यूज यहाँ जरूर चेंज हैं बट दिस क्वेश्चन आई एम डूइंग ऑन दिस 4th टाइम. इसलिए मैंने पहले आपको बनाने के लिए दिया था. तो प्लीज गाइस रिवाइज नहीं करोगे कोई हेल्प नहीं कर सकता. Sir, I got confused at the part where we had written 100 by x plus 70 divided by x because I didn't know what to do with the x. But now I've gotten it. I got till there.
ओके फाइन, ठीक है। सना क्लियर है आपको? So I was able to plot it जैसे अपने लाइन के वे में करा, but I was not able to execute it further on. तो वही मुझे जानना है कि क्यों एग्जीक्यूट नहीं हुआ, क्या रीजन था? आपने को जब ये क्वेश्चन मिला तो आपने क्या सोचा? मुझे वो आप बताओगे तभी तो मैं सॉल्यूशन निकालूंगा आप लोगों के लिए। क्या सोचा था ये बताओ आपने, मतलब दिक्कत कहाँ हुई इस क्वेश्चन को देखने पर? या सना टेल मी। So first I put it on first I drew it on my notebook, and then I, for the first one, like for 30 kilometer and for A from A to B, I figured out the time. ओके The values were given. And then for when I didn't think that X should be put as the value. So that is something I didn't think of. So I put 70 and then I didn't think of X. That's why. ओके ठीक है, ओके नो इश्यू। ओके श्रुति और सभी लोग अभी आपको, सॉरी श्रुति नहीं, सृष्टि, या सो अभी क्लियर है इसमें सब कुछ? Yes, sir. Fine. Okay. So we are moving ahead. Okay, guys. Now we will go for distance time graph. Okay. Yeah. Our topic is distance time graph. अब देखो इसमें होता क्या है, मैं बता देता हूं। Give me a moment, guys. ओके मैं काम करता हूं, मैं कुछ ग्राफ ले लेता हूं जिससे आपको बेटर होगा समझने में। आई एम चेकिंग द ग्राफ, कॉपी, ओके आई एम गोइंग टू प्लॉट इट हियर। ओके गाइस, आपको ये ग्राफ दिख रहा है? Yes, sir. ओके इस ग्राफ में क्या है मैं बता रहा हूं अभी। इस ग्राफ में अगर आप देखोगे तो ये हमारा वाई एक्सिस है। क्या है हमारे पास? वाई एक्सिस। Bye. वाई एक्सिस हम ऑलवेज डिस्टेंस यूज करते हैं। क्या यूज करते हैं हम? डिस्टेंस। एंड Distance. दिस इज व्हाट? दिस इज आवर एक्स एक्सिस। सो मैं लिख भी देता हूं, अगर नहीं दिख रहा तो ये हमारा वाई एक्सिस है, ये हमारा एक्स एक्सिस है। तो हम क्या करते हैं, हम एक्सिस प्लॉट करते हैं और y को हम डिस्टेंस यूज करते हैं और x को हम टाइम। आप देखोगे, time. यस आप देखोगे जब भी याद रखना टाइम या डिस्टेंस कुछ भी लिखते हो, यूनिट देखो यहाँ पे मेंशन किया हुआ है इन मिनट्स। क्या मेंशन कर रखा है यूनिट? इन मिनट्स, राइट? Minute. तो यहाँ पर आप मिनट पुट करो, या अगर आपने सपोज टाइम सेकंड्स में ले लिया है तो आप यहाँ सेकंड्स लिख दोगे ब्रैकेट में, या आपने आवर्स में टाइम लिया हुआ है तो आप यहाँ पे ब्रैकेट में आवर्स पुट कर दोगे। जो भी टाइम आपको क्वेश्चन में गिवन होगा, टाइम आइदर मिनट में होगा, सेकंड में होगा या आवर में होगा, तो आप उसको ब्रैकेट में मेंशन कर दोगे। रीजन ये है कि ताकि उससे मालूम ये चले कि टाइम हमने किस फॉर्मेट में लिया है। अगर मैं यहाँ कुछ भी नहीं लिखूंगा, जैसे मान लो मैं कुछ नहीं लिखा, तो क्लियर हो पाएगा टाइम किस में है, मिनट में क्या आवर में दिया हुआ है? नहीं हो सकता ना क्लियर। तो फॉर क्लियर करने के लिए हमें मेंशन करना पड़ेगा कि हमने टाइम किस में लिया है। अब इस क्वेश्चन में आप जरा ध्यान से देखो, डिस्टेंस में कुछ मेंशन है क्या? डिस्टेंस सो ये किलोमीटर है, मीटर है, क्या है, मालूम चल रहा है क्या? No, sir. So for that purpose, what we will do, we will put it here unit. Either आप किलोमीटर पुट कर दो, मीटर पुट कर दो, माइल्स पुट कर दो, जो भी यूनिट दिया रहेगा आप उसको पुट कर दोगे, राइट? और मैंने पढ़ाया हुआ है ऑलरेडी कि कैसे कोऑर्डिनेट्स आप प्लॉट करते हो। मैं एक एग्जांपल लेता हूं कि ठीक है, ये तो आप समझ में आ गया। अब देखो डिस्टेंस टाइम ग्राफ क्या बताता है। सो इट टेल्स अस स्पीड ऑफ द बॉडी। प्लीज आप लोग मेरे साथ नोट कर लो,
टॉपिक लिख लो डिस्टेंस टाइम ग्राफ, और वो इंफॉर्मेशन किस बारे में देता है? स्पीड ऑफ द बॉडी. सो प्लीज गाइज नोट करो. सभी ने नोट कर लिया पहली लाइन? Yes, sir. Yes, sir. Okay. Now, how to calculate? So, write down to calculate speed. To calculate speed Speed. of the body, we find slope, or you can say also gradient. जैसे दो लोग का नाम, एक लोग का नाम दो होते हैं, वैसे ही slope, और you can say gradient of the line. Don't worry, मैं ये बताऊंगा कि स्लोप हम कैसे निकालते हैं, वो भी मैं समझाऊंगा अभी. ठीक है? Yes, sir. ओके. सो प्लीज ध्यान दीजिएगा कि हम सर आप हमें स्लोप करा चुके हो. ओके, स्लोप करा दिया है. Yes, ओके, sir. सृष्टि आपको करा दिया है? No, sir. ओके, चलिए कोई नहीं, मैं एक बार स्लोप फिर से बता देता हूँ, टाइम नहीं Sir, लगता. you explained this distance time graph completely with the slope also and velocity time graphs. You gave us an overview basically. आपने कुछ लिखवाया नहीं था उसके लिए as far as I remember. ओके, कोई बात नहीं, मैं अभी दोबारा करा देता हूँ, नो इश्यू, डोंट वरी. स्लोप के लिए मैं बता दे रहा हूँ, स्लोप हम कैसे निकालते हैं, क्या करते हैं. सो आई एम जस्ट टेलिंग यू हाउ टू डू दैट. ओके, सो देखिए, मैं सेम ग्राफ यूज करने जा रहा हूँ वापस से दूसरे पेज पे. या ओके, देखिए मैंने सेम ग्राफ फिर से ले लिया. ठीक है, अब इसमें क्या करना है कि आप क्या करोगे, आपको कुछ भी नहीं, आपको एक दो पॉइंट सिलेक्ट करना है. मान लिया मैंने ये और ये वाला पॉइंट मैंने सिलेक्ट किया है. ओके, सो मैं इसको नेम दे देता हूं ए, एंड मैं इसको नेम दे देता हूं बी. इज दैट क्लियर? अभी देखिए, स्लोप करने के लिए हम क्या करेंगे, एक डॉट डॉट आप, या लाइन आपको ड्रॉ करना है तो आप लाइन ऐसे ड्रॉ कर लो, और इधर से ऐसे ड्रॉ कर लो. ये जाकर कहीं ना कहीं क्रॉस होगा. सो वहां पे क्रॉस कर दिया. अब आप देखो ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा. सृष्टि आप बताओगे ये कितना आएगा मेरे पास डिस्टेंस? तो देखो ये यहाँ 10 है और ये यहाँ 40 है. 40 है. तो ये डेल्टा वाई कितना हो जाएगा? distance between 10 to 40, so it will become 30. Yeah. हाइट कितना हो जाएगा? 30 हो जाएगा, राइट? और अगर आप ये देखोगे मेरी दूसरी लाइन जो मैंने यहाँ पे मैंने BC, आई एम टॉकिंग अबाउट BC. सो BC यहाँ से लेकर और यहाँ तक, इसको हम बोलते हैं डेल्टा एक्स. तो डेल्टा एक्स कितना हो जाएगा? तो 5 से शुरू हो रहा है और 20 तक जा रहा है, तो डेल्टा एक्स कितना हो जाएगा? 15. तो याद रखेंगे, स्लोप ऑफ द लाइन, स्लोप ऑफ line is nothing but delta y by delta x. तो delta y by delta x हमने कर दिया, तो ये कितना हो जाएगा? 30 by 15, that gives me 2, right? तो अब इसमें अगर कोई मुझसे पूछता है what is the speed of the body, so speed will become here 2 meter per second. जो स्लोप आएगा वही हमारा स्पीड हो जाएगा. Is that clear, guys? Yes, sir. तो हमने स्पीड कैसे निकाल लिए? स्लोप ऑफ द लाइन निकाला, और जो वैल्यू हमें स्लोप में आ रही है हमने वही वैल्यू स्पीड So, के sir, लिए. we can say that slope is equal to speed. यस, Okay. तभी तो मैंने फर्स्ट पेज पे लिखवाया है, टू कैलकुलेट द स्पीड ऑफ द बॉडी वी फाइंड द स्लोप. इज दैट क्लियर, गाइस? Yes, sir. तो आप लोग जल्दी से इस एक रफ फिगर बना लो, लाइन ड्रॉ कर लो और ये लिख लो. हम एक क्वेश्चन और करेंगे इसी के बेसिस पे. जल्दी से आप इसको कर लो नोट.
हो गया? Yeah. ओके, Sir, I'm done. डन। ओके गाइस, सो मैं क्वेश्चन और ले रहा हूँ। सना आपका हो गया? सना? Yes, sir. Okay, so I'm changing the page and I'm taking one more problem. So please focus here. Okay, guys, देखो मैंने एक नया क्वेश्चन लिया है। Can you see? Can you see the question, guys? Yes, sir. Yes, sir. इसमें हमें कैलकुलेट करना है। मैं एक नेमिंग्स कर देता हूँ। Give me a moment. आप इसको ले लो A, इसको ले लो आप B, इस पॉइंट को आप कंसिडर कर लो C, और इस पॉइंट को कंसिडर कर लो आप D। अब ये देखो टाइम सेकेंड्स में है और डिस्टेंस हमारा मीटर्स में है, राइट? अभी मुझे क्या करना है, वी नीड टू कैलकुलेट द स्पीड बिटवीन AB, speed between BC and the speed between CD। CD. हमें ये सारी चीजें निकालनी है। ओके गाइस, अब देखो हम कैसे करेंगे। अब मैं आप लोग को एक चीज बताता हूं, ध्यान देंगे सभी लोग। स्पीड AB पूछा है। क्या पूछा है? स्पीड AB. AB। आप कुछ नहीं, ये ग्राफ में ऐसे, या ग्राफ पेपर नहीं भी होगा तो ऐसा लाइन बना होगा, तो आप रूलर से आप लाइन बना लेना। तो देखो मैं रेड पेन यूज करता हूँ, गिव मी अ सेकंड। ये वाला। अब देखो गाइस, मैं यहाँ बना रहा हूँ। देखो ग्राफ पेपर ऑलरेडी है तो मुझे दिक्कत नहीं होगी। मैं यहाँ तक आया और फिर यहाँ पे ऐसे इधर से ऐसे बना दिया। ये पॉइंट कुछ यहाँ पे मिल रहा है, राइट? मैं नाम नहीं लिखूंगा यहाँ पे, कोई बात नहीं। कोई मुझे बताएगा कि AB के लिए डेल्टा Y क्या हो जाएगा? 4. डेल्टा Y will become here 4 meters. and डेल्टा X क्या हो जाएगा? 5 meters. 5 meters, 5 seconds. 5 seconds, sorry. 5 seconds. So if I write it down here, slope of this line, slope of Sir, this, I have a question here. yes, tell me. So the the rectangle can be formed from C and 15 and D also, right? But like क्या? triangle can also be formed from C, 15 and D. These Yes. So, but we आप are choosing for the smaller one so that it's नहीं easier, नहीं, right? चूजिंग स्मॉलर वन नहीं। पहले जो मैं बोल रहा हूँ उसको आप पूरी बात सुन लो। जब ये क्वेश्चन खत्म कर लेंगे फिर आप मुझसे सवाल करना, ठीक है? तब तक आपकी डाउट्स क्लियर हो जाएगी, ठीक है? पहले मैं जो कर रहा हूँ वो ध्यान दो, आपकी डाउट्स ऑटोमेटिकली खत्म हो जाएगी। मैं कह रहा हूँ, ठीक है? क्लियर है? अभी स्मॉलर हमने चूज नहीं किया, हमको चूज क्या करना था? We have to find the AB. Where is the AB line? Where is the AB line? This is the AB line. Okay, got it. This is the AB line, right? तो हम इस लाइन पर ही बनाएंगे ना, 2 पॉइंट्स हम इसी पॉइंट लाइन पर लेंगे ना। हम इस लाइन पे क्यों लेने जाएंगे? हमें AB निकालना है अभी, तो हम इस लाइन पर बनाएंगे। सो इस लाइन के लिए मैंने यहां से ऐसे ड्रॉ किया, वर्टिकल और ऐसे हॉरिजॉन्टल। तो इसका इस लाइन का स्लोप क्या आएगा गाइस? कोई मुझे बताएगा? It will be 4 by 5, right? Yes, yes. So I can write down here slope, 0.8. decimal छोड़ देते हैं अभी। So slope of the line AB will become here 4/5 meter per second. So what is the speed of AB? So speed of AB will become 4/5 meter per second. Is that clear? Is that clear? Yes, sir. Okay. Now कोई मुझे अब बताएगा BC, हमें क्या करना है अब? BC, कोई मुझे बताएगा कि BC का डेल्टा Y क्या होगा? 0. So in this case, in the BC case, delta Y will become 0. क्यों? Because it is the horizontal line Same parallel to X. ये horizontal line है, तो यहाँ पे डेल्टा Y आएगा ही नहीं, so 0 हो जाएगा। अब डेल्टा Y जब 0 हो गया तो कोई मुझे बताएगा कि स्लोप ऑफ लाइन BC क्या होगा? स्लोप ऑफ द लाइन BC 0
और यहाँ से यहाँ तक आप टाइम देखो Oh, तो ये टाइम कुछ 10 सेकेंड्स है, तो 0/10 विल गिव मी 0, सिंपल सी बात है, राइट? सो स्लोप ऑफ द लाइन BC इज 0, so speed BC will become here what? 0 meter per second. करेक्ट? क्लियर है अभी? correct. सना क्लियर है यहाँ Yes, तक sir. BC तक? Yes, sir. अब हमें कौन सी लाइन यूज करनी है? CD. तो गाइस अब हम एक काम फिर से करेंगे, हम CD पर चलते हैं और CD के लिए C पॉइंट ये है, D पॉइंट ये है, तो गाइस एक ट्रायंगल यहां बनाओ। तो C से हमने वर्टिकल ड्रॉ किया और D से हमने हॉरिजॉन्टल ड्रॉ किया। कैन यू सी गाइस? तो कोई मुझे बताएगा इसमें This will also be 0 क्यों 0 हो जाएगा? because this is on the x-axis. तो x एक्सिस डेल्टा x आएगा नहीं क्या यहाँ पे? So it will be 7/15. एक मिनट, डेल्टा y कितना हो जाएगा यहाँ पे गाइस? डेल्टा y विल बिकम हियर 7 और डेल्टा x कितना हो जाएगा? 15. 15 और ये 30 है, so delta x will become here 15 guys, right? 15. So in this case the slope of line CD becomes 7/15. So speed CD becomes how much? Speed CD becomes 7/15 meter per second. Please note कीजिए। अब सना, can you hear me? सना, can you hear me? Yes, sir, I can. आप जो डाउट पूछ रहे थे, अब डाउट आपका क्लियर हुआ यहाँ पे? Yes, sir. इज डन? आपका डाउट भी क्लियर हो गया, राइट? सभी को समझ में आया हम क्या करें? Yes, sir. Yes, sir. सभी को Yes, समझ sir. में आया? हमें जो स्पीड बोला जाएगा हम वही लाइन यूज करते हैं। देखो CD बोला तो CD पर आकर हमने फिर ट्रायंगल बनाया यहाँ पे, और स्पीड निकालने का, स्लोप निकालने का सबसे बेस्ट तरीका ये होता है। ओके, जस्ट गिव मी, प्लीज मेक अ नोट ऑफ इट गाइज, प्लीज मेक अ नोट ऑफ इट गाइज, गिव मी अ सेकंड। So done. Yes guys, so all of you done with this? Yes, sir. Yes, sir. ओके, सो यहाँ पर देखिए मैं कुछ आप लोगों को चीजें दिखाने जा रहा हूँ, जरा उसको ध्यान से आप सभी लोग देखेंगे। सो आई एम गोइंग टू टेल यू सम टाइप ऑफ मोशंस। ओके, सो जस्ट गिव मी अ सेकंड, कॉपी इमेज, मैं पेज चेंज करने जा रहा हूँ। ओके गाइस, सो आप ये फिगर देख रहे हो सभी लोग? अब इसमें देखो ध्यान से, इस फिगर में अगर आप देखोगे तो ये लाइन, रेड वाली लाइन यहां तक आया, मींस ये यूनिफॉर्म स्पीड बता रहा है। क्या बता रहा है ये? यूनिफॉर्म स्पीड। यहां पर ये क्या है? स्पीड 0 हो गया। यहां पर क्या है? स्पीड 0 हो गया। सो बॉडी स्पीड 0 पे बॉडी मूव करेगा क्या? गाड़ी की स्पीड 0 हो जाएगी तो बॉडी मूव करेगी क्या? No, so it's a rest. So it will rest and वापस से ये रिटर्न जा रहा है, right? So here the velocity is decreasing basically. Velocity is what happening? It's decreasing, right? So इसको भी हम यूनिफॉर्म स्पीड या यूनिफॉर्म वेलोसिटी बोल सकते हैं, कोई इशू नहीं है। अब गाइज एक चीज आपको और मुझे बतानी है, जो कि बहुत ध्यान से आप देखोगे। ये कौन सा मोशन है? This one, blue line. Guys, blue line is what type of motion?
Acceleration. इट्स नॉन यूनिफॉर्म. एक्सेलरेशन कहाँ बता रहा है? तो डिस्टेंस टाइम ग्राफ स्पीड बताता है. Faster. So it's non-uniform motion. It's what? Non-uniform motion. Is that clear? क्यों? क्योंकि ये कर्व लाइन बना रहा है. यहाँ पे आने के बाद इसका जो स्पीड है वो चेंज हो जा रहा है. ओके, एंड दिस ग्रीन लाइन इज यूनिफॉर्म मोशन, ऑलवेज सेम, राइट? ये रेड लाइन भी जो है, यहां से अगर मैं लिखूं O से A, तो ये यूनिफॉर्म मोशन. स्पीडी, STD स्पीड मींस यूनिफॉर्म मोशन. एंड A to B will become here velocity 0, speed 0. so stationary इसीलिए बोला गया है stationary. Is that clear guys? Yeah. कोई प्रॉब्लम आप लोगों को? No, sir. ओके, एक चीज और है जो चीज मुझे आप लोग को बतानी है, जरा आप लोग ध्यान देंगे. मैं एक ग्राफ ले रहा हूं यहाँ पे गाइस, और फिर मैं आप लोग को बताता हूं. ओके गाइस, नहीं पहले मैं ये वाला दिखाता हूँ, बेटर होगा. Shall I change the page? Shall I change the page? Yes, sir. Yes, sir. Okay. Guys, इसमें Sir, yes. sir, I'm leaving and joining back because there's some Wi-Fi issue. Okay, do it fast. अनिका एंड सृष्टि, ये ग्राफ दिख रहा है आपको? Yes, Yes, sir. sir. ओके, इस ग्राफ में ये दो स्ट्रेट लाइंस दी हैं. क्या दिया है यहाँ पे? दो स्ट्रेट लाइंस. अब इसमें ये एक स्पीड ये बताता है, दूसरा स्पीड ये बताता है, राइट? कोई वैल्यूज वगैरह दे रखा है क्या इन लोगों ने? No, sir. No, sir. तो हम इसका But how will we identify if it's uniform or तो non? नहीं, वेट, which this is the speed of car A and this line represents the speed of car B, right? Yeah. Which car is faster? The question is which car is faster? So can I try answering this one? Wait, Sana, can you hear me? Okay, Sana abhi nahi sun sakte. Okay, which car is faster? Right, guys? Give me a moment. I got something. Okay. Okay, Sana cannot hear. Give me a second, guys. Anika, can you hear me properly? Yes, sir. Okay. One second. I think she has some issue. Yeah. Yeah, Sana, can you hear me now? Yeah. Okay. Now, can you see the graph here? Yes. Okay. अभी आप म्यूट नहीं करो. अभी यहाँ देखो, इसमें आप इस ग्राफ में मैंने अभी बताया ये है कि ये लाइन कार A के लिए है और ये लाइन कार B को रिप्रेजेंट करती है. तो हमने मालूम है कि डिस्टेंस टाइम ग्राफ क्या बताता है? स्पीड बताता है हमें, राइट? सना, डिस्टेंस टाइम ग्राफ क्या बताता है हमें? Speed. तो ये लाइन स्पीड कार A की है और ये कार B की स्पीड का लाइन है. बट यहाँ पे वैल्यूज दिया हुआ है क्या जिससे हम स्लोप निकाल लेंगे और स्पीड डिफाइन कर लेंगे? वैल्यूज है क्या? No. वैल्यूज नहीं है. अब मैंने फिर भी क्वेश्चन लिखा, विच कार इज फास्टर? विच कार इज फास्टर? ये क्वेश्चन मैंने दे दिया.
कैसे सॉल्व करेंगे? सो दिस काइंड ऑफ प्रॉब्लम मैं ऑलवेज याद बता दूं आप लोगों को, जिसका स्लोप ज्यादा होगा वो कार फास्ट होगी. एम आई राइट और रॉन्ग? टेल मी guys. So what do you mean by slope ज़्यादा होगा? Do you mean is Value it of slope, value of slope, value of slope I'm talking. So but we don't have the values here. We don't have the values, you're right, but जिसका स्लोप ज्यादा होगा वो कार फास्ट होगी, हमें मालूम है. अगर स्लोप की वैल्यू होती तो हम निकाल सकते थे, करेक्ट? सो Yes. रिमेंबर दैट स्लोप का एक फॉर्मूला और भी है. स्लोप ऑफ लाइन is equals to tan theta. Theta is what? Theta is angle here. What is that? Angle. अब ध्यान से देखकर मुझे बताओ, अगर मैं इसको मानता हूं कि ये मेरा थीटा 1 है और ये एंगल मेरा थीटा 2 है, कौन सा एंगल बड़ा होगा? थीटा 1 बड़ा होगा, थीटा 2 बड़ा होगा? Sir, I didn't understand what three thing means. What you Okay. just said. सिंपल सी बात, एंगल निकालना जानते हैं? Yes, sir. तो मुझे ये बताओ एंगल कैसे बनाते हैं? एंगल दो लाइन से बनती है, इसको हम एंगल बोलते हैं, Subtracted from the middle. राइट? Yeah. इसको हम एंगल बोलते हैं. तो एंगल को मैंने क्या मान लिया? थीटा माना है, राइट? यहाँ पर जो एंगल है उसकी आपको याद होगा, आपने पढ़ा होगा एंगल में लाइक दिस 30 डिग्री 45 डिग्री. Yes, sir, we have learned it. We have learned it. और ऑलवेज जो एंगल है वो हम एक्स एक्सिस से कंसिडर करते हैं, वाई एक्सिस से कंसिडर नहीं करते. ध्यान दीजिएगा, हम एंगल चाहे तो इधर का भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, लेकिन हम सॉल्व करने के लिए अपने स्लोप के लिए हम ऑलवेज एक्स एक्सिस का ही यूज करेंगे गाइस. ठीक है? तो अब मुझे कोई बताएगा कि ये वाला एंगल बी, line B is making more angle और line A is making more angle with the x? कोई मुझे बता. Line E. Line A is making more angle with the x, right? Yeah. तो मैं इसको नाम, अच्छा मैं इसको नाम देता हूँ एंगल A और इसको नाम दे देता हूँ एंगल B. कोई दिक्कत है अभी एंगल A और एंगल B में? सना, कोई दिक्कत है? So I'm telling you what I understood. So basically we have to find the, जैसे कि A का distance दिया है, and then there's like a line for A which represents the motion of A, and then there's one which represents the motion of B. Right. So we find the angle of B and then A, and then फाइंड we नहीं compare. करना, फाइंड नहीं करना, वैल्यू नहीं निकालना. बड़ा Okay. और छोटा कौन है बस ये जज करना है. तो क्या देख कर नहीं बता सकते हम? ठीक है, तो जो कौन सा बड़ा है तो then Yes. that is considered as the राइट. सो जिसका एंगल ज्यादा, यहाँ पे देखो एंगल A is greater than angle B. Therefore, car A is faster than car B. Okay. बस वैल्यू नहीं निकालनी, वैल्यू पे मत जाओ. मैं बस वैल्यू इसलिए समझा रहा था कि आपको मालूम चले कि एंगल कौन बड़ा होता है. तो ऑब्वियसली जो ज्यादा एंगल होगा वो बड़ा होगा यहाँ, राइट? अनिका, डू यू गेट द स्टेटमेंट हियर? Yes, sir. सृष्टि, आपको समझ आया Yes, sir. कि जिसका एंगल बड़ा होगा वो faster. फास्टर होगा. जब हमें वैल्यूज वगैरह कुछ नहीं पता तो हम ये वाला सिस्टम इस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं. तो प्लीज आप इसको जल्दी से ग्राफ ड्रॉ कर लो, मैं क्वेश्चन और देने जा रहा हूं. या एक काम करता हूं, मैं प्लॉट ही कर देता हूं क्वेश्चन. जस्ट गिव मी सेकंड गाइस, एक सेकंड आप दो, बस मैं प्लॉट कर दे रहा हूं. ओके गाइस, आप ये So फिगर can you go back to that one so that I can write it? वेट एक सेकंड. आप ये दो फिगर्स देख रहे हो यहाँ पे, Yes, sir. कार ए कार बी. कोई मुझे बताएगा कि कार ए का एंगल बड़ा है या कार बी का एंगल बड़ा है? मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ एंगल ए और एंगल बी, किसका एंगल बड़ा है? I think A. एंगल ए ऑब्वियसली. Sorry. नहीं, बी नहीं है. Car B angle A. एंगल ए इज बिगर, राइट? सो Yeah. एंगल ए, ओ सॉरी, अच्छा मैंने उल्टा लिख दिया. ओह सॉरी. Exactly. हाँ हाँ मेरी गलती है, सॉरी. एक मिनट.
यहाँ पे ये पर्पल कलर जो है वो कार बी है और ब्लू कलर कार ए है। सॉरी ओके, अब बताइए कौन सा बड़ा है इसमें एंगल? B. तो एंगल बी इज ग्रेटर, राइट? सो कार बी इज फास्टर देन कार ए। अंडरस्टैंड गाइस? Yes, sir. ओके, अब जरा सा नोट कर लो आप लोग, जल्दी से नोट करो। अच्छा, इन दोनों ही प्रॉब्लम में आपका जो ग्राफ था वो कहीं ना कहीं टच हो रहा था एंड पोजीशन पे। मैं एक ऐसा ग्राफ ड्रॉ करूंगा जो एंड कहीं पोजीशन पे टच नहीं करता, फिर हम कैसे निकालेंगे? आई विल जस्ट शो यू राइट नाउ। नोट कर लीजिए गाइस फास्ट। सना डन हो गया ये वाला? Yes, sir. ओके ओके, ठीक है गाइस, ये जब आप लोगों ने डन कर दिया है तो मैं एक क्वेश्चन और दिखाता हूं आप लोगों को। जस्ट होल्ड सेकेंड। ओके गाइस, ध्यान दो जरा यहाँ पे। अगर कुछ ऐसा हो, ये x, सॉरी ये y, ये x, ये y हो गया, ये x एक्सिस, यहाँ पे डिस्टेंस, यहाँ पे टाइम, ओके, एंड आई एम टेकिंग गाइस, आप ये देख रहे हो दोनों लाइंस? Yes, sir. So I'm not able to see those lines. I can see the graph but not the lines. नहीं, मैंने दो लाइंस बनाई है, एक ब्लैक So कलर। nahi dikh rahi. How is that possible? I don't know. Something happens to my Wi-Fi in the middle. ओके, सृष्टि आपको दिख रहा है? सृष्टि, सृष्टि, कैन यू हियर मी? अनिका, कैन यू हियर मी? Yes, sir. I can see it. So your voice is cracking. Okay. Shrishti, can you hear me? Just give me a second. सना, आपको दिख रहा है अभी? सृष्टि, आपको दिख रहा है ये लाइन? So Yes, sir. dikh raha hai, but your voice is not clear. Oh, give me a second. Now it's fine? Yes, sir. Okay. Sana, it's fine now? Hello, can you hear me? Sir, I don't think her internet works that well today. इसका मेरा? Sanaka, her voice is breaking. Oh. ओके, नो इशू। आप लोग ये देखो, ये प्रॉब्लम, इस प्रॉब्लम में आपको मालूम हो रहा है कि कैसे हम, ये कार ए है और ये कार बी है। ओके, आई विल राइट डाउन हियर, दिस इज द कार बी। सो आप जब एंगल डिसाइड करते हैं, ये देखो किसी लाइन पे टच नहीं हो रहा, राइट? तो हम क्या Yes. करेंगे, हम यहाँ पे ऐसे खुद से एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर लेंगे। देखो मैंने ड्रॉ कर लिया। अब जैसे ही ड्रॉ करेंगे तो हमको ये एंगल बी और एंगल ए मालूम हो जाएगा, कौन बड़ा है कौन छोटा है। Yes, sir. हम डिसाइड कर सकते हैं आसानी से। Yes, तो sir. मुझे बस यही बताना था कि जब हम आसानी से इसको डिसाइड कर सकते हैं तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं कार बी इज फास्टर देन Car A. कार ए। अनिका, डू यू अंडरस्टैंड? Yes, sir. So your voice is coming from very far away. I don't know why. I have tried to fix everything I can. सभी को ऐसा ही लग रहा है? No, sir. No, sir. ओके, कोई बात नहीं सना, तो यहाँ पे कोई इशू नहीं है, दैट्स ओके। सो सना, यहाँ पे जो मैंने बोला वो आपको क्लियर है? क्या बोला मैंने? Sir, ढंग से नहीं है। ओके, अभी मैं बता रहा हूँ। देखो, हमने दो लाइनें ड्रॉ की थी जो कि किसी भी एक्सिस को टच नहीं कर रहा था, राइट? Yeah. तो हमने क्या किया, हमें एंगल डिसाइड करना था, तो मैंने देखो डॉट डॉट लाइन हॉरिजॉन्टल लाइंस बनाई हैं दोनों ही पॉइंट से। कैन यू सी दैट? Yeah.
तो जब हमने उसको लाइन ड्रॉ की तो हम आसानी से फिर हमें दिखने लगा कौन सा एंगल बड़ा होगा। Got it. तो मैंने बस इसमें ये दिखाने की कोशिश की है कि अगर किसी एक्सिस को टच नहीं भी करेगा तो भी हम कैसे डिसाइड कर सकते हैं। इज दैट क्लियर? इज दैट क्लियर? Yes. ओके। और ध्यान रहे गाइस, मैं एक और यहाँ पे लाइन ड्रॉ करना चाहता हूँ, एंड दैट लाइन इज लुक्स लाइक दिस वन। गाइस, ऑल ऑफ यू, ये लाइन देखो, ये एक्स एक्सिस को नहीं टच कर रहा। कहाँ टच कर रहा है ये कहाँ Y टच कर रहा है? कार सी इज टचिंग द वाई एक्सिस। तो अब कैसे इसका एंगल कैसे डिसाइड करेंगे? सेम, यहां पर जाओ और डॉट 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 ऐसे मार्क कर लो हॉरिजॉन्टल। दिस हॉरिजॉन्टल मस्ट बी पैरेलल टू एक्स, और यहां पर एंगल हम ऐसे डिसाइड कर लेंगे कि एंगल बड़ा है छोटा है। इज दैट क्लियर गाइस? Yes, Yes. sir. हाँ, अगर y एक्सिस को भी टच कर रहा है तो कोई बात नहीं, हम वहां पर जाके हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर लेंगे। नहीं भी टच कर रहा है तो भी हम टच कर लेंगे। क्लियर? Yes, sir. ओके, सो आप लोग इसको जल्दी से बना लो, ये फिगर बना लो तो याद रहेगा। डन है गाइस? Yes, sir. ओके। Sir, I can't hear you properly. ओह, ओके, नो प्रॉब्लम। ओके, नो इश्यू। अभी क्लियर है? अभी क्लियर है? अनिका, कैन यू हियर मी? Yes, sir, I can hear you. ओके, ठीक है। तो यहां तक आप लोगों ने बना लिया है, ठीक है? तो हम एक काम कर सकते हैं, जस्ट गिव मी अ मोमेंट। मैं रब करने जा रहा हूँ गाइस, यहाँ पे थोड़ा सा आप ध्यान दोगे। आई विल रब द पार्ट, क्लियर ऑल ड्राइंग्स। ओके, फाइन। तो आप लोग का डिस्टेंस टाइम ग्राफ यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है, और मैं एक क्वेश्चन आपको देता हूँ। नहीं, ये तो ठीक है, वेलोसिटी टाइम ग्राफ है। ओके, कोई बात नहीं। ओके, तो गाइज आप लोग का यहाँ पे डिस्टेंस टाइम ग्राफ डन है, ठीक है? आप लोग सृष्टि, मेरी आवाज जा रही है? Yes, sir. मैं एक क्वेश्चन पेपर जो है वो आपको मैं सेंड कर दूंगा। आप उस क्वेश्चन पेपर को सॉल्व कर लेना और मुझे आंसर्स आप व्हाट्सएप के थ्रू सेंड कर देना। Okay. इज इट Okay, क्लियर? sir. और गाइस आप लोग का बस एक टॉपिक बच रहा है इसमें से, दैट इज वेलोसिटी टाइम ग्राफ, ठीक है? जो कि मैं ट्राई करूंगा कि थर्सडे को कंप्लीट करा दूं, ठीक है? ओके, सो एक Yes, sir. सेशन और इस चैप्टर के लिए ओनली वन सेशन इज नीडेड, और उसके बाद मेरे क्वेश्चन पेपर्स आप लोग पर गिर पड़ेंगे। तो आप लोग प्लीज अच्छे से पढ़ाई करो, तैयारी करो, और दूसरी चीज क्वेश्चन पेपर अच्छे से अटेम्प्ट करना है, ठीक है? अगर आप वो क्वेश्चंस पेपर अटेम्प्ट कर ले जाते हो, पूरा बना ले जाते हो, आपको किसी एग्जाम में फिजिक्स के लिए, इस चैप्टर के लिए कोई भी आपको ये नहीं बोल सकता कि हाँ आपको नहीं आता। किसी भी एग्जाम के पेपर्स बन जाएंगे। क्लियर है? Sir. Yes, sir. ओके, ठीक है, ठीक है गाइस। तो हम लोग फिजिक्स सेशन के लिए हम लोग फिर थर्सडे को मिलते हैं, ठीक है? आप लोग प्लीज इसको रिवाइज करना। फाइन? Okay, sir. Thank you. या, ओके, Bye, sir. या, बाय। Bye, sir. Sir, link. हाँ, मैं आपको व्हाट्सएप कर दे रहा हूँ, ठीक है? Okay. Bye. यस।
Thank you. Stay connected.